I became an IS officer because my dad wanted me to become an IS officer. I made his dream into my dream. But after these 37 years in the Indian Administrative Service, I write in the last chapter that if I were to be born again, I'd like to be an IS officer all over. Your identity is determined by the color of the light on the top of your car. Your identity is not determined by what you are. So that realization dawned on me that whether Anil Swarup is Anil Swarup or his identity is determined by being a district magistrate or secretary government of India. कुमार मंगलम बिरला जी मुझसे मिलने आए, उनके साथ 2 CEOs थे. मेरी टेबल पर कोई फाइल नहीं थी. तो उन्होंने कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूँ इतने सीनियर अफसर की टेबल पर कोई फाइल ही नहीं है. मैंने कहा हमने सब डिजिटाइज कर दी. तो अपने दोनों CEOs की तरफ घूमे, कहते हैं व्हाई कांट वी डू इट इन आवर ऑफिस. मैंने कहा यू वोंट बी एबल टू डू इट. व्हाई? आई सेड आई कैन अफोर्ड टू बी ट्रांसपेरेंट, यू कांट अफोर्ड टू बी ट्रांसपेरेंट. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के सबसे बड़े सेगमेंट्स हैं मीडियम और स्मॉल स्केल सेक्टर. उसकी आप चर्चा ही नहीं करते क्योंकि अखबार में छपेगा नहीं. अखबार में छपेगा 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया. अगर हम MSME के साथ बैठकर उनसे समस्याएं जाने और उनके साथ मिलकर समस्याओं का समाधान का प्रयास करें तो आगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना is meant for the poorest of the poor, many of whom would have been dead but for this scheme. So the good wishes of those that survived and their families come back to me somehow, anyhow. That's good enough a kick for me to do what I'm doing. For young people wanting to get into the services, what is your message? Probably one of the... Hi, I'm Divya Jain and I'm the founder of Safe Educate and Because She Can. I've been working in the upskilling space for the youth for the past 14 years. आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है and we have with us a celebrated IS officer Anil Swarup ji. He has been the former Coal Secretary. He was the Secretary for School Education and Literacy. इन्होंने बहुत पावरफुल पोर्टफोलियोज कंट्रोल किए हैं. आज के डिस्कशन में हमने डिस्कस किया है कि what is power? What is the different kinds of power? And how can you truly be a good leader? लीडर केवल पावर से कंट्रोल नहीं करता है. इट्स नॉट अबाउट डिमोनाइजिंग दैम, इट्स नॉट अबाउट लीडिंग फ्रॉम फियर, बट रियली अंडरस्टैंडिंग योर टीम कि उनकी मोटिवेशन क्या है, व्हाट रियली स्पार्क्स दैम, व्हाट ड्राइव्स दैम, एंड हाउ कैन यू एक्चुअली इन्फ्लुएंस पीपल to create real change, to get what you really need done. It's an incredibly exciting episode where we get into the nitty-gritties of how governance works, how people work, how people think, how politicians think, and कैसे इस way को navigate करते हुए we can create an India, we can create a life that we can love, that we love living, and create the change that we want to be. The episode starts in 3, 2, 1. So, very excited and honored to have you with us today in this podcast, in which I would love to discuss with you, the concept of power, to understand कि हम actually इंडिया चलती कैसे है, एक IS ऑफिसर का क्या रोल होता है, and to really learn from your years and years of experience in running and making our country what it is today. Look forward to this conversation. Thank you for inviting me here. अनिल जी, मैं चालू करना चाहूँगी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से. एक काफ़ी इनफेमस रिपोर्ट थी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसने अडानीज़ को टारगेट किया था. जी अब उस पे बिजनेस पे तो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ ही, जी बट आई थिंक जो उसने बहुत ब्यूटिफुली पॉइंट आउट किया है कि कैसे पावर इज़ हेल्ड बाय अ वेरी फ्यू पीपल. एंड हम सोचते हैं कि सबके पास कंट्रोल है, लेकिन काफ़ी कम लोग हैं जो एक्चुअली सब कुछ चला रहे हैं. अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखते हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि 70% ऑफ बिजनेसेस आर स्टिल वेरी ओल्ड फैशन्ड. काफ़ी स्ट्रॉन्ग हायरार्कीज़ हैं और वो एक या दो बॉसेस हैं जो सब कुछ चला रहे हैं अपने साथ, कंट्रोल में सब कुछ कंट्रोल करते हैं. सो आई लव टू अंडरस्टैंड कि ये पावर क्या है, क्यों ये कंट्रोल होता है और कुछ लोग इस कंट्रोल को पकड़ के बैठ जाते हैं. एंड हम बोलते हैं टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सोचते हैं कि सबको इन्वॉल्व करें, लेकिन अगर आप देखते हैं तो इट्स स्टिल बीइंग रन बाय अ फ्यू पीपल. what is about power that leads to this? देखिए, मैं कभी बिजनेस पे तो रहा नहीं, तो मुझे बिजनेस का आइडिया नहीं है कि वहाँ पावर कैसे डिराइव होती है. मैं एक सिविल सर्वेंट रहा हूँ और वहाँ अच्छी तरह समझता हूँ कि पावर का मतलब क्या होता है. In a usual sense, power is my capacity to influence your mind, your thoughts, and action. That's it. It's as simple as that. Your power to influence. Influence actions and thoughts of others. Beautiful. That's what power is all about. जी. And it is natural for a human being
to feel that he is powerful. Almost everyone would want to influence the thoughts and actions of others. It's very natural. But the question is, how do you obtain it? जी Whether the instruments that you use to become powerful, Gandhiji was very powerful, but the instruments that he used was very different. Hitler was very powerful. He used different instruments. So these people were powerful. No one will deny that Mahatma Gandhi was not powerful. No one will deny that Adolf Hitler was not powerful. So power was desired by all of them. जी But the instruments are very important. right And in the civil service context, also, you can be very powerful by using your danda. That is also power. You can become very powerful by using the power of yes, your ability to help the poorest of the poor. If you can do that, you can feel very powerful. I felt very powerful helping the poor. The smile that what I did brought to the lips of poor people, deprived people, made me feel very, very powerful. So, to my understanding, power being feeling powerful is also very subjective thing. What gives you a kick? I've used the word kick in my book. What gives you a kick? And I'll give you an example. I was trying to explain this to somebody in the US. I was doing this scheme called Rashtriya Swasthya Bima Yojana, which has now morphed into Ayushman Bharat, जी arguably be one of the biggest health insurance scheme in the world. And when we started this scheme, there were problems, but then it came to be recognized world over as one of the finest schemes. ILO, UNDP, World Bank, everyone recognized the scheme. So when Obama became the president of the US, one of his advisors rang me up. He said, Mr. Swaroop, can you come over to the US and tell us about your scheme? I said, our scheme is totally different. I wanted to wriggle out. I said, the context is different. I don't think I can tell you much about it, but he insisted. So in one of the visits to Washington, I was invited by Brookings Institute that houses these advisors. So during the presentation, there were representatives of the federal government, state government, our own mission people were there. There were also people from Gates Foundation and Rockefeller Foundation and some other foundations. So I made this presentation, and when after the presentation, I was having a cup of coffee. This guy from Gates Foundation walks up to me. He said, Mr. Swaroop, you seem to be very passionate about this scheme. What is the government giving you beyond your salary? So that's a very fundamental question. जी Again, related to what you asked me in the beginning, the power part. Why do I do what I do? Do I feel powerful in doing what I'm doing? So I paused for a moment and then I asked him, why does Gates Foundation give billions of dollars to poor countries? He said, well, that's our job. But more than that, we derive a lot of satisfaction out of helping the poorest of the poor. Satisfaction is power. You know, power is an instrument through which you feel satisfied. Bottom line is satisfaction and happiness. Power makes you feel happy. Power makes you feel satisfied. So that's the bottom line. So I paused when I asked this question, he said, that's a job. But more than that, we derive a lot of satisfaction out of helping the poorest of the poor. I said, you've answered your own question. The Rashtriya Swasthya Bima Yojana is meant for the poorest of the poor, many of whom would have been dead but for this scheme. So the good wishes of those that survived and their families come back to me somehow, anyhow. That's good enough a kick for me to do what I'm doing. So I use the word kick here, feeling powerful. Then I narrated an incident to illustrate what I was saying. In this scheme, I used to go to small hospitals that were empaneled. One day I was visiting a hospital and I was talking to a beneficiary patient. Suddenly I heard a very feeble voice from behind. So एक बहुत ही वृद्ध महिला मुझे बुला रही थी, बेटा इधर आओ. शी वॉज सो ओल्ड एंड फ्रेल कि वो बैठ नहीं पा रही थी. लेटे लेटे अपना, ये स्मार्ट कार्ड बेस्ड स्कीम थी, स्मार्ट कार्ड हिला के कह रही थी. उनको किसी ने शायद ये बताया था कि मेरा कुछ संबंध है इस योजना से. मैं गया उनके पास. शी कुडंट सिट, सो आई बेंड डाउन एंड आस्क्ड हर, माता जी आप ठीक तो हैं? शी टेल्स मी, बेटा मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन इन अस्पताल वालों ने मेरा बड़ा ख्याल रखा. मैंने कहा फिर तो आप ठीक हो जाएंगे, अपने घर जाएंगी. नहीं बेटा, मेरा कोई घर वर नहीं, मैं तो झोपड़ी में रहती थी, मैं भीख मांगती थी. मेरा पड़ोसी था, वो भी भीख मांगता था. मुझे बुखार आ गया, ये मुझे यहाँ ले आया, यहाँ सब मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझसे पैसे भी नहीं मांगते, और मेरे पास है भी नहीं देने को. मैंने कहा नहीं माता जी, आपको पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से ठीक होंगी, घर जाएंगी. बोले नहीं बेटा, मेरा तो ना कोई भाई है, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, बेटा कोई नहीं है, और वैसे भी मेरी उम्र इतनी हो गई, अब मैं ऊपर वाले के पास जाऊंगी. This carried on for 10 seconds and then she made a remarkable statement. She tells me, ऊपर वाले से जाके एक बात जरूर कहूंगी, तुम्हारी स्कीम बहुत अच्छी है. oh wow I call them my Bharat Ratnas in my book. जी To me, that is power. Now you can have another power. You can wield your danda and demonstrate.
Many people enjoy demonstration of that power. Nothing wrong with that. That's their choice. Everyone has. So, unlike elsewhere, I don't have experience doing business, but in bureaucracy, you have an option to find your own way of feeling powerful. And power is all about what you feel powerful in. Lovely. So the question here is, and that everyone has to answer on his own, whether you want to use the lal batti, whether you want to have a carcade, whether you want to security, you decide. And I don't criticize them because that's their understanding of power. My understanding of power is making people happy, making people good, whatever I can contribute on your own way. And the IS provides you that opportunity to do a lot of good. And that's why I write in my first book, I became an IS officer because my dad wanted me to become an IS officer. I made his dream into my dream. But after these 37 years in the Indian Administrative Service, I write in the last chapter that if I were to be born again, I'd like to be an IS officer all over. So Lovely. it used to make me feel very, very powerful. And more than that, post retirement, I never thought life after retirement would be as good as it is turning out to be. God has been kind. I feel even more powerful now because there are no external elements of feeling powerful. They have all gone. Now I feel even more powerful. काफ़ी बार हमें स्पेशली एज यंगस्टर्स एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है पावर और मनी राइट एंड आई थिंक as power gives you the ability to influence other people's actions, money also gives you the power to live your life according to your own terms. एक फ्रीडम देता है मनी. Absolutely. जब आपके पास एक पे चेक है, सैलरी है, आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे क्या करना है आज सुबह, कैसे लाइफ लीड करनी है. इफ़ आई एम हेल्दी, मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई लव्ड वंस, आई कैन लुक आफ्टर माई ओन हेल्थ. सो आई थिंक दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन आई सी अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स डीलिंग विद, कि पावर चूज करे या पैसे, एंड व्हाट trumps the other. Both are interlinked. Both are interlinked. I think money is an essential ingredient Okay. to feel good inside. I mean, in poverty, in penury, very difficult to feel good inside. So you have to have those basic comforts. Now the question is, where are those comforts getting limited? So I'll give you an example. If those comforts are personal in nature, I personally would not have no quarrel with it. But if they're not personal in nature, they are there to impress somebody else. To give you an example, जी. I've been living in Delhi for past, I think, 25, 26 जी. years. I've yet to see any person driving his own Mercedes car. जी. Okay? And not all back seats of Mercedes car are comfortable. Some जी. of them, lower काफी ones are not चाहिए. so जी. comfortable. जी. Okay? Yet he buys. All the pleasure of driving that Mercedes car goes to the driver. Why जी. does he buy a Mercedes car? That's my problem. So if you are earning money for your own comfort rather than show off, it's the greed and your desire to impress others that creates problem with regard to money. But money for yourself, for your own requirements and needs, I think everyone should aspire for it. I mean, you should not live in penury. You should live comfortably. But that comfort has to be your comfort rather than somebody else. I mean, you don't take it otherwise. But I have still not understood, why do ladies wear 6-inch heel? You know, the point is, you are trying to impress somebody else. If it gives you, standing tall gives you confidence, please, for heaven's sake, take that discomfort. But if it's trying to impress somebody else, that's where the problem is. I mean, I learned it the hard way. Whatever I'm saying, I may have understood now, but when जी. I was in college, someone told me, you have a wonderful voice, and in our times there was Amitabh Bachchan. They said, जी. तुम्हारी आवाज तो अमिताभ बच्चन जैसी है. तो मैं अपने आप को अमिताभ बच्चन समझने लगा. मैंने अपने बाल बड़े कर लिए, बेल बॉटम पैंट पहनने लगा. अब मैं फोटो देखता हूँ उस समय की तो डर लगता है. सो द पॉइंट इज, instead of being myself, if I try to ape somebody else and earn money to become, instead of picking up his qualities, you must always learn from others, but don't ape somebody else. That's where the problem is. So nothing wrong in trying to become powerful, and money is a good instrument of being powerful, of feeling powerful. Your ability to assist somebody else financially will come if you have money, and by assisting somebody, if you feel powerful, nothing like it. So I don't think anything wrong with money per se, and money is an instrument to become powerful. Becoming powerful is also an instrument to get money. So they are interlinked. There's no contradiction between feeling powerful and making money. But you have to define your own boundaries. जी. That's where the problem is. Whether in case of power, whether in case of money,
I don't think there's anything wrong with either of them per se. जी. It's a question of your greed that comes in. And how do you keep that You have to draw a separate? line for जी. yourself. Now, I'm nobody to draw a line for somebody else, but I think inherently we all know where should we limit ourselves. And my understanding is very clear on that. I have to decide whether this benefits me or I'm just trying to impress somebody else. कि मेरी पर्सनली डिफाइन करना चाहिए अंदर Everyone से has to. कि that what See, is your it that requirement will be different from mine. जी. I can't define your requirement. जी. Your needs will be defined by you because you're going to suffer if you're going to beyond it. It's a very personal matter. That's why I don't suggest to anybody कि यार इतना करो इतना नहीं करो. आपको अपना खुद निर्धारित करना है कि आपको क्या करना है. You know, the bottom line here is that each one of us knows deep inside what is good for me. But more often than not, we don't talk to ourselves. we're very influenced by लोग क्या बोल रहे हैं Yes, and absolutely. नेबर ने ये किया है या फ्रेंड Absolutely. ने ये किया है उसकी शादी That हुई is तो मेरा भी होना that is where the चाहिए. problem is. You know, when you are either trying to influence somebody else or getting influenced by them, that's where the problem is. जी. You're not doing it for yourself. जी अगर पावर की बात करें एंड यू नो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर यू सेट कोई लाल बत्ती की है कोई डंडे की है यू नो सो इन योर एक्सपीरियंस व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स जो आपने देखी हैं कैसे उनको यूज़ किया है कौन सी ज़्यादा देखिए इफेक्टिव रही हैं शुरू कौन शुरू सी में कम I used to also get excited when I had security with me and that lal batti and a gadi. It was, I mean, I would be wrong if I say I didn't feel excited about it. I used to feel excited. But gradually I understood the redundancy of it by understanding its temporariness. ओके You know, it's not there. So your identity is determined by the color of the light on the top of your car. Your identity is not determined by what you are. So that realization dawned on me that whether Anil Swaroop is Anil Swaroop or his identity is determined by being a district magistrate or secretary government of India. And post retirement, I feel that comfort that since I had got out of those things, I don't feel that sense of deprivation. सो बट कितना मुश्किल है लाइक यू नो टू बी अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टू हैव दैट काइंड ऑफ पावर टू बी अ सेक्रेटरी लाइक कंट्रोलिंग आपके पास इतनी पावर है आप हाउ डू यू कीप It, दैट बैलेंस it और is not easy. It is मतलब not easy because जी power goes to your head. जी It is gradual realization when you're not there that you start realizing that was a temporary sort of thing. My value will be determined by what I am rather than the clothes that I wear or what gets to be given by others. And that's where you start realizing that I have to evolve as an individual to be reckoned with. You know, I write in my book, the last couplet in Ethical Dilemmas of a Civil Servant is खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे बता तेरी रजा क्या है. lovely. How do you evolve as an individual to be reckoned with? So then you stop demanding, you start commanding. So whether you can command. So I'm glad that in the 38 years of my career, I didn't go to any politician for any favor whatsoever. And yet I got probably the best posting that a civil servant could think of. So there were many occasions where I started understanding the utility of what I was thinking, that जी I would evolve as an individual to be reckoned with. So for example, when I was doing this RSBY, the Rashtriya Swasthya Bima Yojana scheme, first 2 years I used to have a lot of problem getting money. But once I demonstrated the efficacy of the scheme and it came to be recognized, believe me, one day before the budget, the Joint Secretary Budget used to ring me and ask me, Sir, kitna paisa aapko chahiye? Now that was the, you learn gradually, you know. जी So जो आप कर रहे हैं, उसको आप इतना स्थापित कर दीजिए कि लोग फिर उसको पूछने लगें. कि मुझे चाहिए और तो ये आपने पहले लाइक वाज दिस समथिंग दैट यू डिसाइडेड व्हेन यू वर स्टार्टिंग आउट No, कि मैं कभी पॉलिटिशियन से फेवर नहीं लूंगा या लाइक डिड यू लर्न अबाउट इट डिड यू हैव it was, सर्टेन रूल्स of course, not going to politician was decision right in the beginning. But there are many things that I learned through committing mistakes, through understanding. It's not that life is simple. You learn. My understanding of life changed. My understanding of service changed. I remember when I was transferred of the first time, I felt terrible. मतलब मैंने एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एमएलए थे वहाँ के, बहुत ही पावरफुल एमएलए थे, उनके अगेंस्ट एनएसए का केस बना के भेज दिया डीएम को
DM. It was unthinkable. The period was such. Indira Gandhi had been assassinated. I got this feedback that this MLA is behind all this arson and looting. So I debated for a while and then made out a file. And file went to the district magistrate. This this was 1984. So this MLA complained to somebody. I was summoned to Lucknow. I was asked to withdraw the file. I refused to withdraw the file. So how old were you at this time? Must have been 26, 27 years. And you had the guts to send this More report. than guts, I mean, it was more impulse at that point. And guts came later. At that point in time, I didn't think about much about it. Then I got transferred. I was terrible. I didn't know what had hit me. I mean, many years down the line, when I was trying to protect a subordinate officer, my minister was very corrupt. He wanted me to suspend the deputy director. And he had not given any reason. So I rang up the minister and asked him, "Sab, क्या हो गया?" He said कि वो मुझसे मिलने नहीं आया. हमने कहा था बड़ी छोटी चीज़ है, मैं कह दूंगा मिल लेगा. I found out about that officer and everyone said, "साहब ये तो बहुत बढ़िया अफसर है." तब my dilemma was how to protect him. So I looked at the rules and found that if I disagreed with the minister, I could route the file through the chief secretary. So I spoke to the chief secretary, explained the whole thing. He agreed with me. कह रहा फाइल भेज दो. मैंने फाइल भेज दी उनको. वो बैठ गए फाइल पे. तो मंत्री को मालूम किया. मैंने कहा साहब चीफ सेक्रेटरी पास गई है फाइल. So then he met the chief minister. I don't know what happened. I was transferred. Now my whole approach to transfer had changed. Chief secretary was very upset. उन्होंने मुझे बुलाया, अरे अनिल तुम उसको बचाने के चक्कर में तुम्हारा ट्रांसफर हो गया. तो मैंने कहा साहब क्यों परेशान होते हैं साहब? फॉर ए सिविल सर्वेंट ट्रांसफर इज लाइक डेथ. जो होना है उसके लिए परेशान क्या होना हो सर. वैसे भी मैं हिंदू फिलॉसफी में विश्वास करता हूँ. मुझे आप कहीं पोस्ट करेंगे ना, मेरा पुनर्जन्म होगा, मैं वहां जाके फिर वही पाप करूंगा. सो हंसने लगे. सो माई होल अप्रोच चेंज. सी आई लर्न थ्रू माई करियर दैट objective reality is what it is. जी You have to change yourself. जी You can't change the objective reality. जी वो तो जो है वो है. आप अपने चिंतन को क्या परिवर्तित कर सकते हैं. वही मेरा चिंतन ट्रांसफर के बारे में परिवर्तित हो गया. जहां 1984 में मैं इतना ज्यादा आई वाज upset. सो अपसेट. Right. अब यहाँ पे आके 2003 की बात है ये. आई वाज टोटली कूल. आई कुडंट केयर लेस. करना वहां कर दो, वहां काम करेंगे. Now, the world, I don't know whether it was changing or not, but I was certainly changing. I was learning it the hard way. I was learning it over a period of time. There are many such lessons, and I'm still learning. You know, you learn every day. So it's a question of how you look at issues. And how do you really look at the problems, right? या तो आप problem को लेके and then you get upset about it, or you become a victim to it, See, or I you looked at turn it around. problems. I used to dig deep into problems. So when I was posted as Coal Secretary, Government of India, there was crisis. जी Scams had happened, CAG report had happened. तो क्या किया जाए. मैंने एक फ्रेंड को फोन किया. मैंने कहा यार कोल सेक्टर कैसा है. उसने पूछा गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है क्या. सो आई गॉट टू नो कि क्या हो रहा है वहाँ पे जी कोल. जी जी आई वॉकड इनटू द ऑफिस एंड इट वाज एटमॉस्फियर लाइक वॉकिंग इनटू हेल. वहाँ पे या तो सीबीआई ऑफिसर्स के पीछे भाग रही है, फाइल के पीछे भाग रही है. इट वाज टेरेबल. सो माई एज आई सेड माई थिंकिंग हैड चेंज. आई सेड यार स्थिति इतनी खराब है और खराब तो होगी नहीं. I अब love जो होगा अच्छा ही होगा. जी I can walk away with that credit. So that optimism, that positivity, that helped me. Of course, we turned around the coal sector from acute crisis to exporting coal to Bangladesh. We were toying with the idea of exporting coal to Bangladesh. All that happened by looking at the problem in depth. So I never believed in scratching the surface. Go to the bottom of the problem, the why of the problem, and solutions will start emerging. सर आपने इसमें बात की of being transferred and going from one sector to the other, from turning around the coal sector, school education. You've taken some very very senior portfolios, and there's always this quandary कि हम IS services, it's the backbone of the country. मतलब ना वो पूरी country आज जो है, I genuinely believe it's the civil servants and the structure of the civil services that's created our country for what it is. But for someone in the services, this constant change to go from one place to the other. So एक तो है कि does that impact कि आपने कोई project change create किया है, आपकी वो thought है. So when you shift from one place to the other, so how do you manage that continuity and that change?
और इस पे आपके पर्सनल रेपरकशंस क्या होते हैं इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग योर लाइफ, योर फैमिली, एक न्यू कम्युनिटी, न्यू स्टेट? I don't think you change the state. You are given a state card, you stay there. So you get shifted from one place to the other. Yes, you feel sad and bad that you started something and don't know what happens thereafter. I used to also feel bad कि इतनी मेहनत किया, अब अगला वाला आके मालूम नहीं क्या करेगा. Okay. But gradually I realized कि मेरी एक भूमिका है यहाँ पे. मैं जो कर सकता हूं वो करूं और बाकी के बारे में अनावश्यक रूप से परेशान ना हूं. अगर मैं परेशान होता हूं फिर भी जो मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता. जी। इसमें एक राइनल्ड नैबर हैं, अमेरिकन मंक, वो बड़ी बढ़िया बात कहते हैं. लॉर्ड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट थिंग्स that I cannot change, courage to change things that I can, and the wisdom to understand the difference between the two. Now this is very critical. ये शुरू में मुझे समझ में नहीं आता था. शुरू में जैसे मेरा ट्रांसफर हुआ मैं बड़ा अपसेट हुआ. देन आई रियलाइज्ड कि इस जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं, जो नहीं कर सकता. अगर मैं अपना समय उसमें बिताऊंगा जो मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूं वो नहीं कर पाऊंगा. सो इफ यू कैन फोकस ऑन व्हाट यू कैन, द कैन विल ग्रो. But if you are wasting your time on what you can't, Yeah. then you won't be able to do what you can. Now, this became very, very important aspect of my existence. And, I remember earlier in my career, I used to get very upset at the traffic jams. जी। Okay. So one day my wife was traveling with me. मैं फिर किसी ट्रैफिक जैम में फंस गया, मैं फिर अपसेट हो गया. तो मेरी वाइफ ने बड़ा कूलली मुझसे पूछा, इनका तुम कुछ कर सकते हो? मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? देन शी सेड, जब कुछ कर नहीं सकते तो अपना खून क्यों खौला रहे हो? So the question was very simple. Should I focus and spend time on what I can? So that was one principle that held me in later part of my career. I was totally focused on what I did. And the second thing that I did, I tried to build systems so that I became redundant. So if I moved out, those systems will continue. For example, the Rashtriya Swasthya Bima Yojana was a scheme created which faltered in between because the new government thought it will not work. But then the new government went back to RSBY and created Ayushman Bharat. कोल का जो हम लोगों ने सिस्टम बनाया, व्यवस्था बनाई, वो आज 9 साल हो गए, वही व्यवस्था चल रही है. So you create systems which outlast you. In some cases, you may not be able to create those systems. So be it. The question that I would ask myself is whether I did what I could. If I did, I would feel easy. Now, shifting from one place to the other question is, many people ask of IAS officers कि आपको तो एक्सपर्टीज ही नहीं, आप क्या गए, आप कोल सेक्रेटरी बन गए, जी। कोल का तो आपको कुछ पता जी, ही नहीं, आपको सेक्टर के आपको बारे में। एजुकेशन सेक्रेटरी बना हाँ दिया, जी। आपको एजुकेशन हाँ कुछ जी। नहीं पता, हाँ जी। आप इधर उधर जाते रहते हैं. जी। So my answer to them is very simple. As you rise up the ladder, it is not the domain expertise that is required. राइट। Your capacity to manage men and women is the Yeah. primary determinant of your success. You don't have to be experts. You have to have domain knowledge. वो तो अगर आपने यूपीएससी ठीक ठाक क्वालिफाई किया तो इतना ग्रे मैटर होता है कि आप आपको समझ डोमेन लो। नॉलेज समझ जाएंगे. जी। आपको एक्सपर्ट नहीं बनना. मुझे तो पता नहीं था कोल को कितने गड्ढे में खोदना है, इस क्वालिटी का कोल उस क्वालिटी में क्या, मुझे क्या मतलब है. कोल खोदने वाले अलग हैं. मैं तो एनवायरनमेंट मैनेज करूंगा, क्योंकि जैसे कोल में लैंड एक्विजिशन करना है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेनी है, मैं उन गवर्नमेंट से बात करूंगा, आपको हेल्प करूंगा. सो हाउ कैन आई वैल्यू एड एज एन आईएएस ऑफिसर rather than interfere with the expertise of an expert already there? I often say the real problem in governance, or for that matter in the IAS, is more of attitude than expertise. Because expertise you can outsource, attitude you can't. You have to have that positive attitude to be able to find solutions to the problems, to be able to get experts, to be able to give them an environment where experts could flourish, could do their job. Instead of competing with the experts, you create an environment, add value. होता क्या है, आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप एक्सपर्ट भी नहीं बन पाते और एक्सपर्ट से आप लड़ते हैं. ये काम तो आईएएस का नहीं है. आईएएस का काम ये है कि हम वो चीज करें जो वो नहीं कर सकता. जो वो कर सकता है उसको करने दें आराम से. मैं अपनी थोड़ी ज्ञान लेकर अनावश्यक रूप से उस एक्सपर्ट को ना समझाऊं तुम ये करो ये करो. सो आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड दैट the core competence of an IAS officer is in terms of managing men and women. That's the key. आप प्राइवेट सेक्टर ले लो, मुझे बहुत आइडिया तो नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने देखा है, क्या इंदिरा नूई पेप्सी का बनाना जानती थी या उन्होंने कभी काम किया? वो मतलब ही नहीं है. रतन टाटा से इंजीनियर थे, उनसे पूछे कितना इंजीनियरिंग का काम करते हैं आज की तारीख में. सो दे आर मैनेजिंग, दे आर evolved managers, they are evolved leaders, they are not experts.
और फिर अगर एक्सपर्ट बनना है तो किस डोमेन में बनेगा? फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस सेक्रेटरी, एक्सपर्टीज होगी इंश्योरेंस में या बैंकिंग में या बजटिंग में, किस चीज में होगी एक्सपर्टीज? और एक्सपर्टीज का तो कोई एंड ही नहीं है. सो वेर एज डोमेन नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, बट आई डोंट थिंक ही शुड बी एन एक्सपर्ट. So I'd love to get into this as a leader, and people who wanting to be leaders or take aspire for leadership positions. क्या वो कुछ skills हैं जो उन्हें work that they should be developing that will help them? देखिए, स्किल्स तो हैं ही, बट एटीट्यूड इज द की. नंबर वन, you should be able to trust your team members. It starts with trust. I can't think of a leader who doesn't trust his team. So, first is trust. Second, when you trust, you'll delegate. If you don't trust, you won't delegate. You will end up doing everything yourself and messing it up. And when you delegate, you have to protect. Because if you don't protect your team, then delegation से वो भी काम नहीं करेगा. So, trust, delegation, and protection. And then you have to lead by example. If you can't do that. And finally, of all these three, a pat on the back. To me, that's critical. Whether you have the courage to take the discredit for failures and you have the courage to give the credit to your team. If you can do this, you can evolve as a good leader. Of course, जो आपने कहा वो capacities भी develop करनी पड़ेगी. A leader has to be a good communicator. जी. He should be able to express himself. He has to be sharp. He has to be visionary. All these attributes are there. They are personal to him that he has to develop. But with regard to others, the leader is in the context of his team. जी. So in the context of the team is very, very important. But he has to himself also develop as a person who's looked at, who's looked upon, who people look up to. So for that, you have to be a good communicator. You have to have the right grasp. You have to be hardworking yourself. You have to lead by example. These are personal attributes of a leader. So what you're saying, this ability to, trust, delegate, and protect is very important. I think as a leader, you have to be very, very secure in yourself Yes. in giving the credit away. मतलब Without अगर that, it won't happen. it's impossible. I think it's a beautiful story of the president of India. I think he was जब वो ISRO में थे. APJ Abdul Kalam, he's Kalam narrated ji it in his book. He's narrated it in his book. Yeah. कि जब वो उनका मिशन फेल Yes, हुआ, yes. he said it's my responsibility. जब actually वो Yeah. पास हुआ, Yeah. he brought up Yeah. his lead and he said कि congratulations, ये आपका lead था. आपके experience में भी life मैं में तो ये one after the, I told you about one officer जी जिनको जी सस्पेंड करना चाह रहे जी थे. मैंने सस्पेंड नहीं होने दिया उनको. जी. मेरा ट्रांसफर हो Even गया. though you got transferred, He you was were still okay. not suspended. And you will not change that. I did Yes. not change. You Right will at not the end, do it. If you had to do it again, you'll do the same I thing. did that. Not only then, I did that many times over. By the time I became Secretary Government of India, one reason why things happened in coal was that my team had the comfort that if anything goes wrong, here is a guy who will take the discredit. That held me. That held me phenomenally. And as Secretary of School Education, I distinctly remember 2018 there was this paper, CBSE paper leak, in which the press wanted to hound the chairman CBSE. And I remember that press conference in which I was sitting and Chairman CBSE was sitting, and press was asking questions to Chairman CBSE. So my response to them was, so long as Secretary Government of India is sitting here, no question shall be addressed to anybody else except Secretary. And I will take your questions. She's sitting here just to assist me. She will not take any of your questions. I took them on. I didn't fight with the minister, but I convinced him into not shifting out Chairman CBSE. And it's a very interesting story because he was very keen on shifting her out. जी He said इतनी crisis है, crisis diffuse हो जाएगी. जी Then it struck me, मैंने कहा साहब ऐसा है कि अभी तो ये मीडिया उनके पीछे पड़ी हुई है. She is a buffer between you and the media. The moment she goes, the media will be after you. Bingo. Wow. He said ठीक है. And imagine कीजिए, the same officer becomes Secretary Government of India. She succeeds me and does wonderfully well. Otherwise, we would have lost her. So my contention is, I would go any distance to protect a colleague of mine who's not in the wrong. If he's in the wrong, then of course I will not do it. But if he's not done wrong, I'll go any distance. I'll stick my neck out. I'll do that even today. So that's such a lesson for us. जो आपने बोला कि when you know someone's got your back,
यू विल गो 100 माइल्स, लेकिन जैसे ही आपको मिसट्रस्ट हो जाता है, हम छोड़ने लगते हैं। देखिए, तो मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। जी। अभी भी किसी भी व्यक्ति ने जिसने मेरे साथ काम किया है, अगर मैं उसको फोन कर दूं कि ये बेटा एक पैर पे खड़े हो रहो, अगर कुछ जरूरी काम है, तो खड़ा रहेगा। अभी, जब तक मेरा दूसरा फोन नहीं पहुंचेगा तब तक खड़ा रहेगा। दैट्स द लेवल ऑफ लॉयल्टी यू गेट फ्रॉम देम, बिकॉज ही नोज कि अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है, ही कैन कम टू मी, आई विल पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड। हो सकता ना हो। सो लीडर हैज टू गेट दैट लॉयल्टी। इट हैज नथिंग टू डू विद एक्सपर्टीज जी। इन अ डोमेन। इट्स ह्यूमन रिलेशंस। You develop those human relations. काफ़ी लोग को लगता है कि लीडर शुड बी फियर्ड। अगर मैं बॉस हूँ या मैं बड़ा हूँ तो मेरे जूनियर्स को मेरे से डर होना चाहिए। देखिए, देयर आप, इज। since you say that, I'll let me give you another example. When I got posted out, जिसमें चीफ सेक्रेटरी कह रहे थे क्यों तुम जा रहे हो, जी। तो मेरी पोस्टिंग हुई स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, जी। which was one of the finest corporation at some point in time, was making losses for 8 years. राइट। So my job was to wind it up. मैं वहाँ ओके। गया. So it's a beautiful building in Lucknow. I walked into that again, feeling as if I'm getting into a graveyard. Because जितने लोग थे उनको लग रहा था ये कि ये तो आपकी अब, थीम है लाइफ में कि जब आप जाते हैं तो इट्स actually I became, so to say, I and think, then you reflect on wave a Christ. magic wand and it Not magic becomes wand, but initially I also felt कि मैं इस संस्था का क्या करूंगा। My job was जी। to wind it up. जी। ये सब समझ रहे थे इनकी नौकरी चली जाएगी। जी। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। होता क्या था कि ये संस्था सिडबी से लाइन ऑफ क्रेडिट लेती थी जी। और इंडस्ट्री को लेंड करती थी। जी। तो इंडस्ट्री जब सिक हो जाती थी तो इंटरेस्ट पूरा माफ कर लेते थे और प्रिंसिपल पे सेटल कर लेते थे, जी। और अपने क्रेडिटर्स को वो इंटरेस्ट पे करते थे। जी। तो बैलेंस शीट वाज गेटिंग स्क्रूड अप जी। बिकॉज लायबिलिटीज वर देयर, एसेट्स वर गेटिंग लिक्विडेटेड। तो मैंने कहा इसको रिवर्स करते हैं, इनसे थोड़ा इंटरेस्ट मांगे इंडस्ट्री से और सिडबी से कहें इंटरेस्ट माफ कर दीजिए। सो नाउ इट वाज अ वेरी सिंपल आइडिया बट वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. How do you convince SIDBI into writing off your interest? So I did some research and rang up the managing director of SIDBI. अब मेरा conversation, I have recorded that in my book. मैंने उनसे कहा कि साहब ऐसा है कि we owe you 250 crores, of which principal is 80 crores and interest is 170 crores. If I give you 80 crores, will you write off 170 crores? So he said, कैसे करेंगे? ये तो बहुत सारा अमाउंट है। मैंने कहा साहब वैसे ही कीजिए जैसा आपने 15 प्राइवेट सेक्टर का किया है। आई डन माई रिसर्च। अरे 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 अरे, ही नेवर थॉट दैट आई वुड डू दैट। बोले नहीं नहीं साहब, आप तो पब्लिक सेक्टर है। हमने कहा हमें कांटे लगेंगे क्या, हमारा क्यों नहीं करेंगे आप? तो बोले नहीं साहब बड़ा मुश्किल होगा। मैंने कहा देखिए आपने मेरे बारे में रिसर्च नहीं की। नाउ आई डिड समथिंग विच वॉज अनएथिकल। आई सेड आईएएस में आने से पहले मैं पुलिस सर्विस में था। मेरे 2 बैचमेट इस समय डिप्टी डायरेक्टर हैं सीबीआई में। मैं उनको चिट्ठी लिखने जा रहा हूँ कि आप मेरा नहीं माफ कर रहे इंटरेस्ट, उनका 15 लोगों को कर दिया। दिस इज रॉन्ग बट आई डिड इट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट हिट द नेल ऑन द हेड। अरे आप ये क्या कह रहे हैं, अच्छा अच्छा ऐसा कीजिए, मैं आपको 2 दिन में बताता हूँ। 2 दिन छोड़ दिया, अगले दिन सुबह उनका फोन आया कि आप अगर हमें 80 करोड़ दे दीजिए तो हम 170 करोड़ माफ कर देंगे। आई कुडंट बिलीव माई ईयर्स बट आई डिडंट हैव अ पेनी। सो आई वेंट टू फाइनेंस सेक्रेटरी। मैंने कहा मैडम वो वी ओ सिडबीज 250 करोड़ एंड दे आर ऑल स्टेट गारंटीड, तो अगर पे नहीं करेंगे तो ट्रेजरी अटैच हो जाएगी, वो रिकवर करेंगे। बोले हाँ अनिल बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, क्या किया जाए? तो मैंने कहा मैडम मैंने कर लिया। क्या किया तुमने? मैंने कहा मैडम मैंने सिडबी एमडी से बात की है, ही इज अग्रीड टू राइट ऑफ 170 करोड़ इफ वी पे 80 करोड़। शी कुडंट बिलीव हर ईयर्स। मैंने कहा बट मैडम मेरे पास तो पैसा है नहीं, आप मुझे पैसा दे दीजिए। तो 30 करोड़ उन्होंने मुझे दे दिए। 30 करोड़ मैंने सिडबी को दिया, उसमें मुझे लगभग 60 करोड़ का इंटरेस्ट सबवेंशन मिला। बैलेंस शीट तो अपने आप ठीक हो गई, बट माई जॉब वॉज टू रिकवर दैट 50 करोड़। कैसे रिकवर करूं? देन आई कॉल द मोस्ट करप्ट जनरल मैनेजर फॉर अ कप ऑफ टी। नो वे। ये सब करते थे हम धंधे। जी। जी। बिकॉज बाय दैट टाइम आई रियलाइज कि जो करप्ट आदमी जेल में नहीं गया है वो बड़ा होशियार है। जी। बेवकूफ होता है। he's He's managed managed it. to stay मैंने out। बुला जी। के कहा, मैंने उससे कहा, मैं had very interesting conversation with him. I said यार इस संस्था में अब कुछ बचा तो है नहीं, तुम चूसोगे क्या? तो एकदम no one accept that he's Yeah. corrupt. And no one's going to हाँ, so I told him, actually आप बात कर रहे हो मैंने उससे। कहा कि ऐसा है कि यार जो तुमने किया वो किया, बीती ताही बिसार दे। अब तुमने सुना, मैं चाहता हूँ कि हम ये 50 करोड़ कैसे रिकवर करें, तुम्हें आता है कैसे रिकवर करना, तो मेरी हेल्प करो। He agreed. And again, to cut a long story short, he put his heart and soul. He recovered most of the amount. A most corrupt general manager. And when the organization became good and profitable, there was somebody else wanted to come in my position, so I was transferred out. It didn't really matter to me. I kept a track of this officer.
एंड एवरीवन यूज्ड टू टेल मी, साहब वो तो बिल्कुल इतना बढ़िया काम कर रहा है, ना पैसा लेता है ना देता है। तो मैंने उसको एक दिन घर पे चाय पे बुलाया। मैंने कहा, यार तुम्हारी लोग बड़ी तारीफ करते हैं, ये तुम्हारा हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? अब देखिए व्हाट ही टेल्स मी। बोले, सर जब आप 300 लोगों के सामने खड़े होकर, अफसर के सामने मेरी पीठ थपथपाते थे और कहते थे ये जो सुधार हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है, सर मेरी छाती चौड़ी हो जाती थी, और जो किक मुझे उस समय मिलती थी वो पहले कभी नहीं मिली। दिस किक आई हैव यूज्ड लेटर ऑन, जो मैं RSBY का आपको बता रहा था। जी, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज, every officer or your team member requires a different sort of an intervention. beautiful. So what I used to do in most of my assignments, I used to spend a lot of time with my immediate team and understand them कि इसको कौन सा स्पार्क दूं कि मैं अपना काम करा लूं, because I had this bad habit of leaving the office at 6 o'clock. जी, As Secretary Government of India, I was 4 years. I used to leave at 6 o'clock. मैं बहुत, मेरी रेपुटेशन थी, मैं बहुत काम करता था, मैं काम नहीं करता था, काम कराता था। मैं काम कराता था। सो बट आई गॉट दिस आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल विदाउट यूजिंग द डंडा। मेरा ख्याल पूरे करियर में मैंने शायद 1 या 2 बार इस्तेमाल किया होगा डंडा, जो Beautiful. बहुत ही बदमाश था। बट अदरवाइज आई यूज्ड टू फाइंड वेज ऑफ इंसेंटिवाइजिंग देम टू डू व्हाट आई वांटेड टू डू। बोलते हैं सर कि आईएएस में एंड ब्यूरोक्रेसी में वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट वी डील विद ऑल द टाइम, especially also for us, working in skilling, there is a lot of political interference कि अब एक इलेक्शन हो गए या पार्टी चेंज हो गई, अभी बीजेपी है, अभी कांग्रेस है, स्टेट गवर्नमेंट आ गई, पॉलिसी चेंज हो जाती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कि हम ये करना चाहते हैं, आप XYZ पर्सन को फेवर दें, या ये काम कराएं. सो दिस इज़ आई थिंक अ मैसिव प्रेशर दैट अ लॉट ऑफ IAS ऑफिसर्स, पीपल इन द सर्विसेज डील विद. आपके साथ ये क्या एक्सपीरियंस रहा मेरी है? पूरी चौथी किताब एनकाउंटर्स विद पॉलिटिशियंस इस पर है पूरा। और चूंकि मैंने अनेक प्रकार के पॉलिटिशियंस के साथ काम किया, मैं सेक्रेटरी रहा मिस्टर कल्याण सिंह का, स्पेशल सेक्रेटरी रहा मायावती जी का, तो और सेंटर में भी मैं रहा, तो मुझे हर पॉलिटिशियन को देखने का मौका मिला। तो शुरू में मेरा नज़रिया थोड़ा अलग था पॉलिटिशियन के बारे में, जो कि सामान्य होता है कि जितना गड़बड़ हो रही है पॉलिटिशियन की वजह से हो रही है, जितने पॉलिटिशियन सब गड़बड़ हैं। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि वो सही नज़रिया नहीं है। पहली चीज़ तो वो ऑब्जेक्टिवली सही नहीं है, और दूसरा अगर वो समझ के मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना था कि जो है वो है, अब मैं उससे कैसे काम कराऊँ। जी, बट अपने करियर में मैं इतने अच्छे और पॉलिटिशियंस के साथ मैंने काम किया और इतने खराब पॉलिटिशियंस के साथ काम किया, तो मैं समझ में आ गया कि जैसा समाज है अच्छे बुरे लोगों का, वैसे ही पॉलिटिशियन भी है, क्योंकि पॉलिटिशियन भी इसी समाज से आता है, उसमें कुछ अच्छे कुछ खराब हैं। तो फिर मैंने अपने आप को परिवर्तित करने का आरंभ किया, और जैसा वो एक कपलेट है जो गालिब के नाम से चलता है, लेकिन गालिब का है नहीं वो, उम्र भर यही भूल करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी आईना मलता रहा। तो मैंने आईना मलना बंद कर दिया, मैंने अपना चेहरा देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, तो मैंने अपने आप को चेंज किया। मैंने पॉलिटिशियन को समझने का प्रयास किया कि वो भी किसी सीमा, किसी परिधि में काम कर रहा है, जी, उसकी भी कुछ मजबूरियां हैं। तो क्या उन मजबूरियों को ध्यान रखते हुए मैं उसके साथ काम कर सकता हूँ, क्योंकि हम प्रजातंत्र में काम कर रहे हैं। ये कहना गलत होगा कि पॉलिटिशियन ये नहीं करने देता, ये नहीं करने देता। मेरे कई साथी भी कहते हैं, जैसे आपने कहा ये प्रेशर है, ये प्रेशर है। जी, मेरे अपने करियर में पहले 12-13 साल के बाद कोई प्रेशर नहीं आया, कोई प्रेशर। मैं तो कोल सेक्रेटरी रहा, किसी ने कोई प्रेशर डाला ही नहीं, क्योंकि मेरा मस्तिष्क क्लियर हो गया था। वो इस प्रकार से था कि अगर कोई पॉलिटिशियन नियम के विरुद्ध कोई काम मुझसे कहता है, मैं पोलाइटली से मना कर दूंगा, ओके, ठीक है। नियम के तहत कुछ कहता है तो तुरंत करूंगा, उसको इन्फॉर्म करूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम में से कई लोग सिर्फ ना तो करते हैं, हाँ त्वरित गति से नहीं करते। पूरी ब्यूरोक्रेसी बदनाम है इस बात के लिए कि काम सही है फिर भी बैठे हुए फाइल पर। आप करो ना, तो उससे आपकी रेपुटेशन बनेगी कि ये गलत काम नहीं करता, सही काम तुरंत कर देता है। फिर आता है वो ग्रे एरिया, जहां पे नियम साइलेंट है या ही नहीं, क्लैरिटी नहीं है कि नियम में। तो वहां आपके अप्रोच पे निर्भर करता है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो पहला आप प्रयास ये करेंगे वो काम करें, क्योंकि किसी नियम को वायलेट नहीं कर रही है, तो अगेन आपकी इमेज पॉजिटिव बनेगी। और फिर सिस्टम बनाने की कोशिश करें कि किसी को पॉलिटिशियन के पास जाने की जरूरत ना पड़े। मैं उदाहरण दूंगा आपको। शुरू शुरू में अपने करियर में मैं एडिशनल स्टार बैंकिंग था, तो वहां एक समस्या थी कि हस्बैंड वाइफ जो दोनों सर्विस में होते थे, वो अलग अलग पोस्ट हो जाते थे। फिर वो किसी नेता के पास जाते थे, नेता के दबाव का वजन देकर उनको साथ पोस्ट किया जाता था।
एक दिन एक अफसर आया मेरे पास, बोला सर मैं किसी पॉलिटिशियन के पास जा नहीं सकता, मेरी वाइफ वहाँ पोस्टेड है, मैं यहाँ पोस्टेड हूँ, सर हम चाहते हैं साथ हो जाए। तो मुझे उसकी बात समझ में आई, भाई साथ रहने में क्या नुकसान है। तो मैंने एग्जामिन किया, फिर एक व्यवस्था बनाई कि अगर ये कंडीशंस फुल, जैसे 2 उसी समकक्ष पोस्ट उपलब्ध हैं, उनको कितना टाइम हुआ है, ये सब देखते हुए एक व्यवस्था बना दी। उसके बाद से उस हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से काम होने लगा, ना कोई नेता के पास जाता था। तो मैं नहीं कह रहा हूं हर केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन पहला प्रयास ये होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति समस्या लेकर आ रहा है, अगर वो नियम के विरुद्ध नहीं है तो उसका समाधान करने का, चाहे वो नेता हो कोई हो। तो अगर आप ये करेंगे, जैसे पहले 10-12 साल में गलत सलत कुछ आते भी थे, उसके बाद से आना ही बंद कर दिया, उनको पता था ये गलत काम करेगा ही नहीं। नो वन केम टू मी, पीपल आस्क मी, आप ऐसे ऐसी पोजिशन में रहे, आपको पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रहा। मैंने कहा मुझे को मेरा क्लैरिटी ऑफ थॉट था, अगर वो नहीं हो सकते नियम के तहत तो मैं मना कर देता था। अगर आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं, आप दूसरे को ले आइए। मुझे ट्रांसफर में कोई, बाद में ट्रांसफर भी मेरे कम हो गए। शुरू शुरू में जैसे मैंने जी आपको उदाहरण जी दिए, जी बड़ा स्टेबल टेन्योर रहा। अब हो सकता है मुझे सरकार ऐसी जगह पोस्ट ही नहीं करती थी जिसे सेंसिटिव कहा जाता हो या लुक्रेटिव कहा जाता हो, जी। मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जहां जाता था फिर अच्छी तरह काम करता था। सो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, आपका क्या एक्सपीरियंस देखिए, रहा? दोनों की कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ खराबियां हैं। जैसे मैं अक्सर जब कंपेयर करता हूं, क्योंकि मैंने यूपीए को भी क्लोजली देखा, इंडिया को भी क्लोजली देखा, तो यूपीए में बहुत ही ज़्यादा डिसेंट्रलाइज था। जी हर मंत्री अपना डबली बजा रहा था अलग, उस मतलब प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं रह रहा था, या पता भी था तो कुछ करते नहीं थे। जी। तो बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज था। उस टाइम में स्कैम्स बहुत सुनने में आते थे, देखिए आई ऐसा ना फील। कि जब आप इतना छुट्टा छोड़ देंगे किसी को, और पावर जैसे हम लोग शुरू में कह रहे थे, तो वो कुछ भी बनाने के चक्कर में लग जाएगा, ये जी होता था, है ना। जी। अब वो सेंट्रलाइज हो गया है, अब हर डिसीजन पीएमओ में जाता है, ये दूसरा एक्सट्रीम है। मैं अक्सर कहता हूँ इसके बीच में कुछ होना चाहिए, है ना। राइट। तो अब जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड आए, तो उसमें ये निर्धारित किसी एक लेवल पर हो गया कि ईडी यहाँ भेजो, सीबीआई यहाँ भेजो, एक जगह पर धनराशि पहुंच रही है। तो ऐसा नहीं है करप्शन अब नहीं है, जी लेकिन उसका स्टाइल डिफरेंट हो गया है। पहले हर मंत्री बना रहा था, अब यह है कि अब ईडी की रेड हो गई, रेड होने के बाद उसने या तो पार्टी ज्वाइन कर ली, या उसने कुछ भुगतान कर दिया पार्टी को, तो केस ही खत्म हो गया। जी। तो दोनों ठीक नहीं है, दोनों में पॉजिटिव्स थे। इस सरकार में पॉजिटिव ये है कि कम से कम पहले 2 वर्षों में मैंने देखा कि गजब के डिसीजंस, फटाफट डिसीजंस होते थे। मोदी जी ने प्रयास किया कि जो साइलोज बने हैं ब्यूरोक्रेटिक, उनको ब्रेक ब्रेक करें। करें। साथ में सेक्रेटरीज बैठकर काम करते थे, बड़ा मजा आता था, खूब फीडबैक लेते थे। मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि ऐसी भी सरकार हो सकती है, पहले 2 साल मैंने देखा। उसके बाद परिवर्तन हुआ तो मुझे थोड़ा दुख हुआ, क्यों हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन हुआ। क्योंकि जो ओपन कम्युनिकेशन हम लोगों का होता था प्राइम मिनिस्टर के साथ, पूरे शुरू में वो बुलाते थे हम लोग को, चाय पे बुलाते थे हर 3 महीने में, और उस चाय पे इतने खुल के बात होती थी, क्रिटिसिज्म भी होता था, सुझाव भी होते थे, खूब बढ़िया डिस्कशन होता था। उसके बाद वो बंद हो गया, कम्युनिकेशन बंद हो गया। अब ये क्यों हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन ये मेरे विचार से उचित नहीं है। वो इतना बढ़िया चल रहा था सब कार्यक्रम, जी इतने अच्छे निर्णय हुए, इतने त्वरित गति से निर्णय हुए जैसे पहले होते थे। अब क्या हुआ, कंसंट्रेशन होने की वजह से पीएमओ में, अब फाइल वहां जाती है, अब वहीं पे अटक जाती है। किसी की हिम्मत नहीं होती पूछने की फाइल यहाँ। गडकरी जी को छोड़कर, मुझे याद है मीटिंग में गडकरी जी जरूर कह देते थे, प्रधानमंत्री जी फाइल तो आपके पीएमओ में ही है, ये कह देते थे वो, लेकिन और किसी की हिम्मत नहीं होती थी। अब ये स्थिति क्यों आई, मैंने अभी 2 दिन पहले एक आर्टिकल लिखा इसी पर। मैंने कहा कि आज की तारीख में तो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जी प्राइम मिनिस्टर तो स्वयं बड़े चिंतित इस बात से रहते थे कि निर्णय में विलंब नहीं होना चाहिए, फाइल पे किसी को बैठना नहीं चाहिए। मुझे याद है वो नाराज हो जाते थे कि क्यों डिले हो रहा है। जब वो इतना चाहते हैं तो पीएमओ में का डिले क्यों नहीं वो कम करते हो, बड़ा आसान है करना। अगर इसको, जैसे मैंने कोल में किया था, एजुकेशन में किया था, आप फाइल डिजिटाइज कर दीजिए, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से आंकड़ा मांगने की जरूरत नहीं है। आप बटन दबाएंगे, आपको आपको मालूम पड़ फोन पे आ जाएगा जाएगा। कौन सी फाइल किस आदमी के पास, किस अफसर के पास, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड पड़ी है। और आज तक मैंने कोल एजुकेशन में किसी अधिकारी का स्पष्टीकरण नहीं मांगा, लेकिन उसको पता था कि मुझे पता हो सकता है कि वो कितने मिनट, कितने घंटे बैठा है, इसलिए फाइल पे नहीं बैठता था। व्यवस्था यही होती है, व्यवस्था एक्शन से नहीं होती, व्यवस्था वो होती है कि आप माहौल ऐसा बनाइए कि कि उसको लगेगा कि उसको पता लगे, पर पता पड़े। बॉस को पता है कि मैं कब लेट आऊंगा, इज इनफ इज इनफ, फॉर दैट वो आएगा टाइम। थ्रेट ऑफ। तो मैंने अपने, मेरे ख्याल करियर में मैंने किसी के अगेंस्ट एक्शन लिया नहीं, नेवर। डांटा वाटा बहुत, नाराज मैं बहुत होता था लोगों पे, एक्शन नहीं लिया, किसी का नुकसान नहीं किया। मुझे काम कराना था, मुझे एक्शन लेके क्या करना है, मुझे किसी नुकसान करने से कोई फायदा नहीं था। मुझे ये था कि काम हो, उसका कई कई बार डांटना भी पड़ता था, कभी नाराज भी होना पड़ता था, बट
किसी का नुकसान नहीं किया। सो द क्वेश्चन हियर इज कि वर्तमान सरकार में, क्योंकि मंशा बड़ी सही थी, जी मैंने 2 साल में बड़ा क्लियरली देखा, उसका इम्प्लीमेंटेशन में उसको लॉजिकल कंक्लूजन पर क्यों नहीं ले जाया जा रहा, ये मैं भी नहीं। देखिए मोदी जी टेक्नोलॉजी के बारे में इतना इंटरेस्टेड है, मतलब वो मेरी तारीफ ही सी बात करते थे, तो मुझे समझ में नहीं आता कि पीएमओ में क्यों नहीं टेक्नोलॉजी आ रही है। क्योंकि अगर पीएमओ ये निर्णय ले लेगा कि सब फाइल डिजिटल आएंगी, तो सब मिनिस्ट्रीज को डिजिटल होना पड़ेगा। डिजिटल जहां हुए, देखिए एक सबसे बड़ी समस्या सरकार में डिलेस की है, जी करप्शन भी आधा डिलेस की वजह से। आई वॉज जस्ट गोइंग टू गेट इनटू दिस कि ये ब्यूरोक्रेसी में डिलेस और कि अब लेट्स जस्ट वेट कि हम फाइल भाई को क्यों, पास नहीं करते, बाय द टाइम विल बी आउट और वो डिसीजन वहीं का वहाँ मेरा लटका मेरा रह सिर्फ जाता ये है। कहना है कि ये चीज अब हैंडल हो सकती है, जी और इसलिए हो सकती है क्योंकि मैंने की है। जी आपको बताऊं, जब यूपीए 2 में जब स्कैम्स ये सब हो रहे थे, तो उस समय मैं आरएसबीवाई कर रहा था। मुझे एक फोन आया कैबिनेट सेक्रेटरी का कि तुम सुबह चाय पीने पे आ जाओ। तो मैं कभी कैबिनेट सेक्रेटरीट गया ही नहीं था, मतलब गया था डिफरेंट रूम से, बट कैबिनेट सेक्रेटरी से ऐसे मिलने नहीं गया। गया अगले दिन सुबह, उन्होंने कहा भाई हम तुम्हें चेयरमैन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप का बनाना चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आया क्या है। बोले क्योंकि स्कैम्स की वजह से अधिकारियों ने डिसीजन लेने बंद कर दिए हैं, तो इतने प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं, तुम्हारा उस ग्रुप के माध्यम से होगा कि जितने प्रोजेक्ट जिनकी कॉस्ट 1,000 करोड़ से ऊपर है प्रत्येक प्रोजेक्ट की, उसे फास्ट ट्रैक करोगे। आप देखिए, ब्यूटीफुल मैंने कहा साहब ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है। बोले हाँ, यस्टरडे प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर हम लोगों ने सोचा तुम कर लोगे, तो मुझे चेयरमैन बना दिया गया। 15 महीने में यूपीए 2 में हम लोगों ने 5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट फैसिलिटेट किए क्लियरेंस के लिए। और कैसे किए? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम था। हमारे यहाँ कोई फाइल कोई पेपर नहीं था, वो शायद पहला ऑफिस था जहाँ कोई फाइल, किसी इंडस्ट्री को जिसका इन्वेस्टमेंट 1,000 करोड़ से ज़्यादा है, वो मेरे पोर्टल पर जाता था, अपनी प्रॉब्लम लिखता था, वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली कंसर्न डेजिग्नेटेड जॉइंट सेक्रेटरी को चली जाती थी, वो अपना कमेंट पोर्टल पर डालता था, फिर हम ट्राइपार्टाइट डिस्कशन करते थे, और मिनट्स ऑफ द मीटिंग सीधे पोर्टल पे डिक्टेट होते थे। ये पहली बार ऐसा हो रहा था। हुआ क्या उससे? देखिए होता क्या, लोगों ने मुझसे कहा कि कैसे हो गए इतने सैंक्शन। मैंने कहा, बड़ा सिंपल है इसमें फॉर्मूला। नो मैटर हाउ इनएफिशिएंट आई एम, टू द पब्लिक आई लाइक टू अपीयर टू बी एफिशिएंट। आप इनएफिशिएंसी को एक्सपोज कर दो, फिर देखो मजा। आप अपने आप नहीं बैठेगा, जनता को पता है कि ये बंदा बैठा है मेरी फाइल पर। सो व्हाट हैपेंस इज वी बेनिफिट, इफ आई कैन यूज द वर्ड बेनिफिट, आउट ऑफ ओपेसिटी। जी आप पारदर्शी बनाइए व्यवस्था को, करप्शन आधा कम हो जाएगा, ज्यादा कम हो जाएगा, और जल्दी निर्णय होंगे। अब हम पारदर्शिता चाहते हैं दूसरे में, खुद नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं दूसरा पारदर्शी हो जाए। लेकिन हमारी तरफ हाँ, नींद कुछ देखिए मैं आपको दिखे। एक और एग्जांपल दूं। कुमार मंगलम बिरला जी मुझसे मिलने आए, उनके साथ 2 सीईओ थे। मेरी टेबल पर कोई फाइल नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूँ इतने सीनियर अफसर की टेबल पर कोई फाइल ही नहीं है। मैंने कहा मेरे को कोई फाइल है ही नहीं। बोले क्या मतलब? मैंने कहा हमने सब डिजिटाइज कर दी। पूछा कैसे कर दी? मैंने बताया। तो अपने दोनों सीईओ की तरफ घूमे, कहते हैं व्हाई कांट वी डू इट इन आवर ऑफिस? मैंने कहा यू वोंट बी एबल टू डू इट। व्हाई? आई सेड आई कैन अफोर्ड टू बी ट्रांसपेरेंट, यू कांट अफोर्ड टू बी ट्रांसपेरेंट। But sir, this is one of the biggest problems, right? Because it benefits certain people यस, to be यस, non-transparent. So while we want कि transparency हो, bureaucracy faster हो, there are certain segments of the society which still hold a lot of power, जहाँ पे वुड नॉट उनका वांट who don't ट्रांसपेरेंट। want it, and दैट्स it's वेयर, beneficial for them to yeah, hold on कि that's नहीं. where the pressure has to come from the top. Now if the prime minister decides, and I know that if he decides he'll get it done, if the prime minister decides that we'll go digital, he's so fond of technology, Right. if he decides everyone will go digital, फिर सबको बेनिफिट दिखेगा। एक बार बेनिफिट दिखने लगेगा, देखिए ये भी इंटरेस्टिंग है, सिस्टम सस्टेन कैसे होता है? जी सस्टेन तब होता है जब उसके स्टेक होल्डर्स उसमें जुड़ जाते हैं कि इससे बेनिफिशियल है। जी मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, इट इज वेरी इजी टू हैव एन आइडिया इन आवर कंट्री। आइडियाज में प्रॉब्लम नहीं है, आपको आज डिस्कशन कर रहे हैं, कई आइडियाज आप भी दे दीजिएगा। आइडिया, बट फॉर एनी आइडिया टू फ्रक्टिफाई, एंड लिसन टू दिस केयरफुली, फॉर एनी आइडिया टू फ्रक्टिफाई एंड सस्टेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट हैज टू बी politically acceptable and driven, socially desirable, technologically feasible, financially viable, administratively doable, judicially tenable, emotionally relatable, environmentally sustainable. If it is not this, then ideas में डिस्कशन होगा। ये जितने एडवाइजर्स आते हैं यूएसए से, यहाँ उड़ उड़ के आते हैं, वो आइडिया देके चले जाते हैं, जी यहाँ रहते तो हैं नहीं। क्यों? उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता।
जब तक आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होगी तब तक आइडिया कभी होगा नहीं और सस्टेन नहीं करेगा। आप बड़ी बड़ी बातें करते रहिए। And we need to understand that India is a collection of different states. यस, It's not homogeneous. आपकी एब्सोल्युटली, मतलब आप आसाम चले जाएं, आप यूपी चले जाएं, आप बिहार चले जाएं, इट्स आप टोटली डिफरेंट। महाराष्ट्र चले जाएं, खाना पीना वेश भाषा, सब चीज मतलब अलग है। उनका सोचने का तरीका। आसाम में द विमेन विल वर्क, या वहाँ पे या राजस्थान में लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकालने देंगे करेक्ट करेक्ट। जब तक आप वो अंडरस्टैंडिंग समझ के उसका सिस्टम नहीं बनाए। दैट इज वाई दैट इज वाई सेंट्रलाइजेशन इन अ कंट्री लाइक आवर्स विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। जी, यू कैन गिव अ फ्रेमवर्क, राइट, बट हर राज्य इतना भिन्न है कि उनको अपने तरीके से चलाने की हमें स्पेस देनी पड़ेगी। अगर हम हर चीज यहां से डिफाइन करेंगे तो कभी वर्क ही नहीं करेगी, वो अपना कागज पे करता रहेगा। हमें समझना पड़ेगा उन क्षेत्र को, और इसके लिए मेहनत, इसके लिए डिटेल में जाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली डिटेल का जाने हुआ तो अखबार में छपेगा नहीं। अब हमारा इंटरेस्ट सिर्फ अखबार की हेडलाइंस है तो हम डिटेल में जाएंगे नहीं। आप कितने, देखिए मेक इन इंडिया ले लीजिए आप, जी, कितना शेर दहाड़ा, मैं अक्सर पूछता हूँ कितना चला ये बताओ। जी, सी, क्योंकि दहाड़ने में सब इंटरेस्टेड है, सब नौटंकी देखने में इंटरेस्टेड है। एक्चुअल जो उसकी ग्राउंड रियलिटी है कि मेक इन इंडिया में अगर आप बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की इंक्रीज करने की, मैन्युफैक्चरिंग की ये उसका एम था 13% से 25% होगा ऑफ द जीडीपी। ओके, तो हमें समझना पड़ेगा अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, जी, और क्यों नहीं है तो उसके लिए क्या करना है। तो खाली कहने से तो बात बनती नहीं। इसी तरह अगर एम्प्लॉयमेंट हमें जनरेट करना है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या करना होगा। क्या करना। जैसे मैं एक उदाहरण के एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के सबसे बड़े सेगमेंट्स हैं मीडियम और स्मॉल स्केल सेक्टर, उसकी आप चर्चा ही नहीं करते क्योंकि अखबार में छपेगा नहीं। अखबार में छपेगा 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, वो कितना एम्प्लॉयमेंट देते हैं। अगर हम एमएसएमई के साथ बैठकर उनसे समस्याएं जाने और उनके साथ मिलकर समस्याओं का समाधान का प्रयास करें तो आगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब हम ये करते नहीं है क्योंकि हम बड़े बड़े जलसे में फिर बड़े बड़े लोगों से बात करेंगे, बड़ा बड़ा छपेगा, बड़ा बड़ा चमकेगा, हमें वही पसंद है, तो कैसे बनेगा भाई, फिर तो धाड़ेगा, चलेगा नहीं शेर। अनिल जी, आपने बात की थी एक नेक्सस फॉर गुड की, जी जी जिसमें आप अभी इन्वॉल्व हैं। जी जी I would love to know more about it, जहाँ पे you've actually picking up good practices that are happening around the country and आप उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहे जी हैं। इसके बारे में कुछ जी। बताइए जब कि क्या मैं जब आइडिया मैं था, शिक्षा किस सचिव तरह। था जी, तो मेरी आदत थी मैं इंटीरियर एरियाज में घूमता था जाके देखने के लिए कि क्या है स्थिति। तो उसी में मुझे मालूम पड़ा कि महाराष्ट्र में एक स्कूल है, वहाँ बिजली नहीं है। अच्छा, वो करीब थाने से 100-150 किलोमीटर दूर था, इंटीरियर एरिया में। मैं गया वहाँ पर, ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल था। तो क्योंकि कंडक्टेड टूर था, मतलब पहले से बता के गए, तो टीचर मुझे लेने आया, 2 कमरे का स्कूल था। वो मुझे अंदर लेकर गया, तो अंदर जाके मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। वहाँ मैंने देखा हर बच्चे के पास टैबलेट था और स्मार्ट स्क्रीन था। तो मैंने उससे पूछा, यहाँ तो बिजली नहीं, बिजली कहाँ से लाते हो तुम, ये चलाते कैसे हो। तो मुझे वो 2 कमरों के पीछे ले गया, उसने मुझे फोल्डेबल सोलर पैनल दिखाया। उसने कहा सर इससे मैं बैटरी चार्ज करता हूँ, बैटरी से मैं टैबलेट चार्ज करता वाओ, हूँ। मैंने कहा यार लेकिन टैबलेट के पैसे कहाँ से मिले, सरकार तो देती नहीं। बोले सर मैं जब यहाँ कुछ महीने पहले आया था तो यहाँ 40-50 बच्चे थे, कुछ आते थे कुछ नहीं आते थे, और मैं जहाँ रहता था वहाँ थोड़ा इंटरनेट आता था, तो मैं वहाँ से, मेरे पास सेकेंड हैंड लैपटॉप था, उसमें मैं डाउनलोड कर लेता था वीडियो और आके इनको दिखाता था। तो बच्चे चारों तरफ इकट्ठे बैठ जाते थे। तो 2 महीने बाद इनके करीब 20-25 पेरेंट्स आए और इससे अजीब सा प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि गुरुजी पहले तो जाते नहीं थे स्कूल, अब ये भागते हैं, आपने क्या किया। तो उसने बताया कि शायद मैं वीडियो दिखाता हूँ इसलिए थोड़ा ठीक है, इंटरेस्टेड है। तब इसको लगा कि ये पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, तो उसने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग 500-500 रुपये दे देंगे। अब ये गरीब लोग थे लेकिन उन्होंने दिए 500 रुपये। वो 2 टैबलेट ले आया और अपने लैपटॉप से अटैच कर दिया। तो ये जो पैशन था टीचर का, इसकी लोगों को जानकारी होने लगी आसपास। तो एक सीएसआर फंडिंग एजेंसी और एक एनजीओ वो स्कूल में आया और वो मिला टीचर से, तो वो बड़े इंप्रेस हुए। तो सीएसआर फंडिंग एजेंसी ने टैबलेट फंड कर दिए, स्मार्ट स्क्रीन फंड कर दी। तभी मैं भी पहुंचा था कुछ दिन बाद। मैं भी बहुत इंप्रेस हुआ, तो मैंने इससे एक फ़ोटो खींची, संदीप गुंड है उसका नाम। फ़ोटो खींची और ट्वीट कर दी मैंने। सडनली संदीप गुंड लोकल हीरो बन गया और स्कूल के लोग वहाँ आने लगे देखने के लिए, वो भी अपना कुछ करने लगे। इस बीच में, उस समय प्रेसिडेंट नए नए बने थे मिस्टर कोविंद, जी, तो मैं उनसे कर्टसी कॉल पे गया, सेक्रेटरी। तो चाय पी रहे थे, हमें थोड़ा टाइम था, तो मैंने ये स्टोरी नरेट की उनको संदीप गुंड की। तो ही लुक वेरी इंप्रेस्ड। तो मैंने उनसे कहा सर आप मिलेंगे संदीप गुंड से। बोले क्यों नहीं। मैं संदीप गुंड को दिल्ली बुला लिया, वो प्रेसिडेंट से मिला, फ़ोटो खींची,
Sandeep Kund becomes a national hero. This is not the end of the story. The Pastepada, जो जगह का नाम था Pastepada model has now been replicated in more than 50,000 schools of Maharashtra. More than 250 crores were raised through crowdfunding, not a single penny Through from your the one photo and your one one. tweet. That gave me an idea कि अगर अच्छी बात हम करें जी तो लोगों का उसमें आकर्षण होता है. जी दूसरी चीज तब मुझे समझ में आने लगी थी कि हम लोग सिर्फ बुराई क्यों करते हैं. जी क्रिटिसिज्म होना चाहिए, लेकिन अगर कोई अच्छा काम हो उसको भी करें. फिर मैंने सोचा कि ये सब जितने बदमाश हैं, all the rascals and ruffians, they come together and make life difficult for us. Why can't good people come together? And finally, मैंने सोचा ये अच्छा काम जो हो रहा है, इसके लिए अगर हम कोई प्लेटफॉर्म दे दें, जी तो ये अच्छाई बढ़ेगी. तो क्या हम प्रयास कर सकते हैं? तो नक्सस गुट की उत्पत्ति उस समय हो गई थी. रिटायरमेंट के बाद फिर हमने एक फाउंडेशन बनाया, एक ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट में फिर हमने एक वेब पोर्टल बनाया. हमारे 15-16 सिटी चैप्टर हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य यह है कि समय समय पर जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको उनका प्रस्तुतिकरण कर सके. हमारा एनुअल प्रोग्राम होता है, 2 प्रोग्राम्स हो चुके हैं जिसमें हम नेशनल लेवल पर अवार्ड करते हैं अच्छे कामों को. ब्यूटीफुल. और हमारे क्वार्टरली एक न्यूज़लेटर निकलता है जिसमें स्टोरीज हाईलाइट होती हैं. हमारे पोर्टल पर सैकड़ों की मात्रा में पॉजिटिव स्टोरीज हैं. द आइडिया इज टू इंस्पायर पीपल इनटू बिलीविंग दैट गुड कैन हैपन बिकॉज गुड इज हैपनिंग. और इससे अब हजारों की मात्रा में लोग जुड़ रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, सीख रहे हैं, स्केल कर रहे हैं. हाँ, एक बात जरूर है, मेरे को स्पष्ट समझ में आया कि एफिशिएंसीज तो प्राइवेट सेक्टर से आती हैं, स्केल जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर से आएगा. और हम एक दूसरे को गाली देने के बजाय, होता क्या है कि हम अक्सर महसूस करते हैं, सरकार में कहते हैं ये सब जितने प्राइवेट सेक्टर वाले सब बेईमान हैं. सब बीमार है. और सबको लगता है प्राइवेट पॉलिटिशियंस प्राइवेट सेक्टर वाला समझता है कि सरकार में सब बेईमान है. दोनों ही गलत हैं. जी दोनों जगह अच्छे लोग हैं. तो अगर गड़बड़ लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो अच्छे लोग इकट्ठे हो जाएं. तो अब हमारे ये कार्यक्रम चल निकला है और यही है नेक्सस गुड. And I really, Anilji, this positivity is so important because I genuinely believe कि without you, आपको दोनों चाहिए. आपको प्राइवेट सेक्टर भी चाहिए, गवर्नेंस भी चाहिए. गवर्नमेंट चाहिए आपको रूल्स बनाने के लिए, रेगुलेशन के लिए, टू डू अ लॉट ऑफ द वर्क इट्स डूइंग. प्राइवेट सेक्टर चाहिए आपको आइडियाज़ के लिए, स्केल के लिए, इनोवेशन के लिए. एंड वी एज यंग पीपल नीड टू थिंक डिफरेंटली. हम एक ये 36 का आंकड़ा लेके नहीं रह सकते. नहीं हम रह ये नहीं बोल सकते कि एज यंग पीपल वी कांट से कि अच्छा देश चलाना किसी और का काम है. यू हैव टू सॉर्ट ऑफ टेक Correct. दैट स्टेप अप. करेक्ट. अगर आपको कोई चेंज देखना है, यू हैव टू बी द चेंज. जी. आप सोचोगे कि वो पॉलिसी कैसे बन रही है. एट द एंड ऑफ द डे दीज आर एक्सपर्ट्स. अगर आप इन्वॉल्व होंगे, अपने ओपिनियंस देंगे, बात करेंगे अपने लोकल एसोसिएट्स से, डीएम से, जो भी आपके द लोकल political bodies, you need to engage as civil Correct. society. Correct. Civil society can't say कि हम अपना Instagram, Facebook, startup चला रहे हैं, काम को जो करना है करते रहो. You need to engage together to sort of create and raise awareness, Right. create change, be involved with this thing. And really, I think Nexus for Good is such a beautiful example of doing that. For young people wanting to get into the services, what is your message? It is probably one of the finest vocations in the world, जी where you can actually derive enormous amount of satisfaction in doing things that you want to do and impacting the people, especially the poor and the deprived ones. So it's a wonderful, wonderful service. Those that are aspiring to become civil servants, my suggestion to them is to start early. अच्छा You should prepare for the civil service. okay Usually people only prepare for the civil service. They get books and do it. So there are 3 important attributes that they should develop before getting down to preparing for the civil service, and that they can start in class 12, BA earlier, as early as you can. And these attributes are your capacity to comprehend. Comprehension is very, very important because that will help you understand the same thing in a shorter period of time. So comprehension is very, very important. Second is analytical skills. They have to develop over a period of time. Both comprehension and analytical skills take time to develop. They can't be done in a year. जी And finally, and most importantly, is developing communication skills. I keep saying that if you don't develop good communication skills, you may get into civil service somehow, but you will find it very difficult to succeed as a civil servant. If somehow you are unable to make it to the civil service and you develop communication skills, the chances are that you'll succeed in life.
Thank you so much, Anilji. This has been such an inspiring episode for me. I've learned so much. And really, I think aapki learnings, aapki insights, and most of all, I think what I'm taking back is, just take what life throws at you and make it into an opportunity. And just the change that you've actually created and inspired in the country is amazing. So Thank you very much. Thank honor to have had you thank here. thank you. Thank you.